Jai Bhim and Namo Buddhaya everyone. We, the students of VNIT Nagpur, are here to celebrate the greatness of Dhammachakra Pravartan Din. Dhammachakra Pravartan Din is a festival of liberty of thoughts, social justice and equality. So, are you ready to dive into the deep ocean of greatness of Dr. B.R. Ambedkar and the history of Dhammachakra Pravartan Din? Yes, you are right. We are at the place where knowledge is honored, humanism is recognized, social justice and equality is celebrated, and most importantly, self-respect is praised. The holy land of Buddhists, Ambedkarites, and whole Indians, Diksha Bhumi. नांदन नांदन होत रमाचं नांदन आज नांदन नांदन होत रमाचं नांदन भीमाच्या संसारी जस टिपूर चांदन भीमाच्या संसारी जस टिपूर चांदन is of the Dhammachakra Pravartan Din, which is celebrated by masses all across the world. This is a tale about one of the greatest emperor of India, Chakravarti Samrat Ashoka. After his transformation, Samrat Ashoka became a devout follower of Buddhism. He constantly supported Buddhist principles like non-violence, compassion and Dhamma. He sent missionaries across Asia to promote Buddhism, including Sri Lanka and Southern Asia. Dhammachakra Parivartan Din is a significant day in Indian history, celebrated primarily because by the Buddhists, especially in Maharashtra. It marks the day when our Dr. B.R. Ambedkar, a prominent leader, social reformer and the architect of Indian Constitution, converted to Buddhism along with the millions of his followers. This event took place on October 14, 1956 in Nagpur. These days observed to commemorate the mass conversion from where Dr. Ambedkar embraced Buddhism as a way to escape the caste-based discrimination and oppression prevalent in the Hindu social order. Let's celebrate Ambedkar, Buddha, Ashoka, Shahu Phule and all the leaders that have laid the foundation for anti-caste movement and together have thought for destroying the oppression, tyranny and social injustice that exists in the society. Let's kill the Angulimal that resides in us. Let's plant the seed of peace and Buddha's thought along with his thought of compassion and fellowship for all the living beings that lives in this world. Buddham Sharanam Gacchami. So we are at the place of a Democratic India Advocate Association. So let's ask them what they feel about the OBC. हेलो जय भीम मैम। जय। हम VNIT स्टूडेंट्स हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक एडवोकेट एसोसिएशन का मेन उद्देश्य क्या है? डेमोक्रेटिक एडवोकेट एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वकीलों का ऑर्गेनाइजेशन है। आज से 2016 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य है कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो नागरिकों के मूलभूत अधिकार है, जो हक है, उसके बारे में डिटेल्स चर्चा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाती है। हम दीक्षा भूमि में हर साल लीगल एड कैंप लेते हैं और डाका, ये जो संविधान के बारे में जितने भी आर्टिकल्स है उसके बारे में यहाँ जगह जगह से आए हुए लोग, गांव के हैं, शहर के हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं जो हमारे स्टॉल पे आते हैं और हमारे इस डाका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं कि भाई इससे आप हमें क्या प्रोवाइड करोगे। तो हम उनको ये बताते हैं कि हम आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू संविधान के बारे में बताते हैं, संविधान के आपको दिए गए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताते हैं
जो कानूनी तौर पे आपको एक भारतीय संविधान के माध्यम से मिला हुआ है, जो जिससे हमको लोकतंत्र मिला हुआ है और हम इसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। अभी हम आए हैं समता सैनिक दल के पास और हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं। हमने समता सैनिक दल फॉर्म किया। इसका मोटिव क्या है? 2024 में आप क्या क्या इवेंट्स कर रहे हैं? पहले मैं समता सैनिक दल एक्चुअली बाबा साहब ने फॉर्म किया था। समता सैनिक दल एक्चुअली बाबा साहब ने फॉर्म किया था और बाबा साहब ने ये 27 मार्च को 1927 में ही 19 मार्च को 1927 में फॉर्म किया था, क्योंकि उस समय हमारा महाड़ में बाबा साहब जब गए थे पानी के उसके लिए सत्याग्रह के लिए, तो उस समय अपने कास्ट के लोगों के लिए वहाँ के जो सवर्ण लोग हैं उन लोगों ने अपने ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए और वो लोग हमारे ऊपर इस तरह के कोई जुर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए समता सैनिक दल बाबा साहब ने फॉर्म किया था 19 मार्च 1927 को। और बाद में समता सैनिक दल उन्हीं के नेतृत्व में चलते रहा, क्योंकि उस समय जब फॉर्म किया गया था उस समय बाबा साहब हमारे इसके लिए लड़ रहे थे और खूब सारे लोगों को हमारे मारहाण हुई थी, वहाँ पे मारा गया था, सब सामान फेंका गया था, अन्न फेंके गए थे, खाने के लिए नहीं था। इसलिए हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसकी समता से स्थापना की गई थी और बाबा साहब ने की थी। इसलिए हम बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, इसलिए हम समता सैनिक दल को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम हर संडे को समता सैनिक दल की तरफ से हर इतवार को हर संडे को हम संविधान चौक पे जाके वंदना देते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं और उन्हें सलामी देते हैं बाबा साहब। इस तरह हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत हमारी रक्षा होगी। तो समता सैनिक दल फॉर्म किया गया था और उसी के हम अनुयायी है, उसी के हम सैनिक है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने लोगों को जागरूक हो और हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं और जो हमारे जो संयोजक है प्रदीप गायकवाड़ सर, शंकर गायकवाड़ सर, उनके नेतृत्व में हम लोग ये समता सैनिक दल चलाते हैं और उसी का जनजागरण अभियान है और उसके लिए बौद्धों की क्या समस्याएं है, बौद्धों के साथ साथ में ओनली बौद्धों में नहीं दलितों की समस्याएं क्या क्या है, तो वो समस्याओं का निवारण करने के लिए हमने समता सैनिक दल के और आज ही नहीं कर रहे हम लोग, हमारी बहुत सारी परिषद होती है शिक्षा विभाग की। 2020 में जो पोखरियाल जो थे उन्होंने जो नीति अपनाई, अपने बीजेपी गवर्नमेंट ने जो शिक्षा नीति अपनाई थी उसके द्वारा जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो शिक्षा नीति हमारे लोग के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे लोग वही काम करने लग जाएंगे जो पहले करते थे। फूल मजदूरी करेंगे, ये रस्तों के काम करेंगे, उसी नीति से बनाई गई थी और उसी नीति से बनाते हुए उन्होंने इस तरह बनाई कि हमें लाखों की फीस देनी पड़े। If you have to pay that fees in lakhs, you get entry. मैंने वो अपने हिसाब से बनाए है ना, अपने हिसाब से बनाए। हमारे हिसाब से हम लोग के लोग इतने रिच नहीं है, जैसे इतने रिच नहीं है, हम नहीं कर सकते। आज हम सो मच समता सैनिक जागरण हम आगे चला। आलाप तू ये छेड़ दे, झूमे यहाँ हर कोई, गौतम सा बन के आदर्श दिखा दे, हिम जैसा करके हेलो, तो आज हम आए धम्मचक्र प्रवर्तन के अवसर पर दीक्षा भूमि में और ये हमारे सर जो हम स्वयंदीप फाउंडेशन के मेंबर्स हैं, हम इनसे बात करते हैं, क्वेश्चन करें। जय भीम सर। तो सर हमें पूछना था कि जो स्वयंदीप फाउंडेशन है वो किस प्रकार इस्टेब्लिश हुआ है और उनका क्या मेन मोटिवेशन है कि लोगों को हेल्प करना है, और आप जो यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगाते हैं उनके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं।
स्वयंदीप 2008 से इस्टेब्लिश हुआ है। हम हमारे जो दोस्त हैं करीबी, उनकी सहयोग से हम ये भोजन दान का कार्यक्रम, जो बाहर गांव से आते हैं, जो अदर स्टेट से आते हैं, जो नागपुर से भी इंक्लूड है, उनके लिए खाना वाटप करते हैं। तो और एक क्वेश्चन था कि ये जो मतलब धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है वो बाकी फेस्टिवल से बहुत अलग दिखता है। बाकी फेस्टिवल में हम देखते हैं कि वो नारियल, धूप, अगरबत्ती वगैरह सबका होता है, लेकिन अभी दीक्षाभूमि में हमने देखा है कि कोई भी इस प्रकार का कुछ नहीं। क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? सबसे पहले सबको सप्रेम जय भीम। मैं डॉक्टर रितेश मुडगरे। ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हमारे लिए है और ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन बाकी फेस्टिवल से इसीलिए अलग है क्योंकि ये फेस्टिवल में कोई पूजा की सामग्री नहीं दी जाती है, ना ही किसी हार फूल किसी को बाबा साहब को अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बुक्स, करोड़ों में बुक्स यहाँ पे दीक्षा भूमि में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में बांटे जाते हैं, लोग खरीदते हैं। ये आपको आज तो नहीं, ये कल के न्यूज़पेपर में या कल के मीडिया में आपको पता चलेगा कि टोटल कितने बुक्स यहाँ से सेल हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बहुत बांधवों के लिए और इसका बहुत बड़ा गर्व है। और दूसरी एक बात, हमारा ये मिशन है कि पे बैक टू सोसाइटी। हम जो भी करते हैं वो हम एक पे बैक टू सोसाइटी देना चाहते हैं कि हमें बाबा साहब ने इस मुकाम पर लाके खड़ा किया है क्योंकि उनके वजह से ही हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर वो नहीं रहते तो आज भी हम पुरानी इसमें रहते। तो उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और हम कितना भी उनको ट्रिब्यूट देना चाहे वो हमारा जो भी है वो हम किसी और को सपोर्ट करके पे बैक टू सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ खाना देना, गिफ्ट करना, ये चीज़ें हम इस पे बैक टू सोसाइटी से हम कर सकते हैं। थैंक यू।